creating the memories every day of my life for the last 5 years, and for me it has become a way. For me, there is no better feeling than to see evoking emotions and people and bringing them together. It is the way that I express myself. It is the pull towards my inner self. Traveling is my passion, and gaining the love and the support and sharing the knowledge with everyone is my life. Hello folks, welcome back to the another episode. My name is Hardik Dutt. I hope everyone is doing the fine by staying at their home, and I believe that you are being not being contacted to the coronavirus that's happening all over the worldwide. So in this episode, we are going to discuss about the choosing the right colleges and the platform from beginning the career from zero to the higher level. So what the things actually you require choosing the right courses for choosing as a hotel management or either for the diploma or either for the masters. So first of all, I am going to discuss the topic choosing the colleges. See, if you are pass out from the 12th, so you can directly choose a diploma program. So that's equivalent to the management program also. That's for the 3 years program that is called Bachelor's of Science in Hospitality Management. All right, and third we have the masters we have in hospitality management as well. So in that you can cover up the things like the HR segment, the finance segment, the account segments, or the operational managements, and these are the types of courses for the masters. All right. So first of all, I am going to start the topic from the diploma program. So diploma program is a short-term course. Basically, it's for the 1 year program. So one of my follower had dropped me a message to make a video on that. So in this video, we are just clearing out the doubts. So you can just learn the things that which is the right program for you to choose for the hotel management program. Okay, तो इसमें आपका 1 साल का जो डिप्लोमा प्रोग्राम होता है उसमें आपकी पढ़ाई होती है 6 months की. Then afterwards you go for the job training or either for the industrial training program. Alright. फिर उसके बाद होता है इसकी फ़ीस भी कंपैरिजन करा जाए अगर बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के, तो उसके फ़ीस आपकी लो होती है डिप्लोमा की, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज होता है रेदर देन फॉर द 3 year प्रोग्राम. तो इसमें आप डिप्लोमा भी चूज़ कर सकते हैं और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इफ़ यू वांट टू गो फॉर द ग्रेजुएट पोजीशन, सो यू कैन चूज़ द hospitality management. So that's for the 3 years. And if you want to go on a higher position or you want to achieve something bigger or you want to go on abroad, so you can choose for the master's programs as well. Alright. So BSc in BHM, that's for the 3 year program. इसमें आपकी पढ़ाई होती है, फर्स्ट ईयर में पढ़ाई होती है, देन सेकंड ईयर में आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, देन थर्ड ईयर में आप जॉब ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, देन फोर्थ ईयर में आपकी जॉब प्लेसमेंट होता है आपका जो कॉलेजेस के थ्रू होता है. अगर आप जैसे कॉलेजेस के थ्रू में लास्ट प्लेसमेंट जब होता है तो कॉलेजेस के पास रिक्वेस्ट होती है कि दैट यू कैन गो फॉर द मैनेजमेंट प्रोग्राम. सो इसमें क्या होता है कि लिमिटेड होटल्स होते हैं जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं. ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम होता है कि जिसमें आप डायरेक्ट हाई पोजीशन पे आप जा सकते हैं एज ए HOD पोजीशन. बट इसको क्वालिफाई करने के लिए वी हैव अ सर्टेन राउंड्स एंड इसका एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. सो इसमें कई होटल्स होते हैं जैसे आपका ओबरॉयज़ है, ठीक है, मैरियट है आपका, ठीक, इसमें आपका ताज है, ठीक, इन तरीके की प्रॉपर्टीज़ में आपको कराया जाता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम. और एक और भी है एज वेल. सो इसमें आप चूज़ कर सकते हैं. इसमें आपका क्या होता है कि 18 months की आपकी ट्रेनिंग होती है. ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एक पोजीशन दे दी जाती है लाइक असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर और असिस्टेंट फूड एंड बेवरेज मैनेजर और एज अ सूप शेफ इन किचन
or either as a house executive housekeeper. So these are the position once you qualify for the MT program. तो MT program जो होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इसमें, बिकॉज आपके होटल से कोई पर्सन आपका इंटरव्यू नहीं लेता है, इसमें सिर्फ आपके कॉर्पोरेट्स वाले इंटरव्यू लेते हैं आपके, ठीक है। फिर देन आपका जनरल मैनेजर्स लेता है इंटरव्यू, देन उसके बिहाफ पे आपको वर्ल्ड वाइड में आपको जहाँ कहीं पे भी लोकेशन मिलती है, देन आपको वहाँ पे 18 मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपको पोजीशंस आपको वहाँ पे मिलती है, ठीक है। सो बैक टू द क्वेश्चन, मैं आपको कॉलेजेस के बारे में बता रहा था। तो कॉलेजेस आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉलेजेस में आपके आज सच कोई पढ़ाई नहीं होती, बिकॉज नो वन इज़ गोइंग टू आस्क दैट हाउ मच परसेंटेज यू हैव गेन इन योर एग्जाम्स, आइदर यू वर अ टॉपर, आइदर यू वर अ मिड, आइदर यू वर एट द पासिंग लेवल। सो नो बडी इज़ डैम गोइंग टू आस्क यू कि दैट आपने कितने परसेंटेज गेन किए थे। नो बडी विल आस्क यू, बिकॉज इसमें कोई चीज़ ऐसे मैटर नहीं करती है। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो चीज़ मैटर करती है वो है आपकी नॉलेज, योर स्किल्स एंड योर डिटर्मिनेशन टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज़ें आपकी मैटर करती हैं कि आप कितना लॉयल होकर काम कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और आप क्या कंपनी को क्या बेनिफिट दे सकते हैं अपकमिंग ईयर्स में, ठीक है। तो कॉलेजेस आपके लिए कोई मैटर नहीं करता, फ्रॉम वेयर यू वांट टू डू यू कैन डू, और इफ़ यू वांट टू गो फॉर द कॉलेजेस लाइक गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो यू कैन, आपको उससे पहले एक प्री एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर देन उसके बाद आप गवर्नमेंट कॉलेजेस चूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में बस आपका ये बेनिफिट होता है, जैसे आपका दिल्ली में IIHM पूसा है, ठीक है। ये जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस होते हैं, इसमें आपके पास प्लेसमेंट थोड़े अच्छी जगह पे होता है, आपका सैलरी पैकेज थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है। और प्लस इसमें आपको MT प्रोग्राम्स के लिए ज़्यादा ऑफर्स मिलते हैं आपको, ठीक। और अगर आप जैसे छोटे से कॉलेजेस होते हैं, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो भी कराते हैं, अगर आप वहाँ से भी कर सकते हैं तो इट्स ऑल्सो वेरी गुड, बिकॉज आप वहाँ से करके जाएंगे तब भी आपको इजीली जॉब मिल जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग करियर में आप किसी भी होटल में आप अप्लाई करेंगे फॉर द जॉब तो आपको इजीली मिल जाएगा। बस फ़र्क ये होता है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस या कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हैं तो आपको अब्रॉड जाने के चांसेस ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है, रेदर देन गोइंग फॉर इन इंडिया एज वेल, ठीक है। तो इंडिया में आपको जॉब इजीली मिल जाएगी, कोई ऐसा हार्ड एंड टफ वो नहीं है, ठीक है। आप वहाँ पे चीज़ कवर कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और इन माय ओपिनियन, अगर आपको अब्रॉड जाना है तो फर्स्ट यू मस्ट शुड हैव एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडिया, बिकॉज आपको इंडस्ट्री के बारे में मालूम होना चाहिए कि हाउ एक्चुअली डिपार्टमेंट वर्क्स, ठीक है। ये चीज़ बहुत मैटर करती है, क्योंकि आप अगर आप बाहर जाते हैं तो बिकॉज बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क करने का स्ट्रक्चर अलग होता है एज़ कंपैरिजन टू द इंडिया, ठीक है। तो आप कॉलेजेस कहीं से भी करें, नो मैटर, आप बस आपके पास स्किल्स, नॉलेज, ये चीज़ होनी चाहिए, then you are ready to move and you can easily accommodate in any of the property where you want to, ठीक। तो ये आई बिलीव इस वीडियो से मेरे ख्याल से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कॉलेजेस कोई मैटर नहीं करता, चाहे आप कहीं से भी करें, ठीक है। थिंग आपकी ये मैटर करती है कि आपके पास स्किल्स, नॉलेज और डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्किंग। इंडस्ट्री का एक रूल सबसे बड़ा आपको मैं रूल बताता हूँ कि इंडस्ट्री में हार्ड वर्क कोई टर्म यूज़ नहीं होता, बी ए स्मार्ट वर्क। अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेन अ क्विक पोजीशन, ठीक है, यू विल गेट अ क्विक लर्निंग, ठीक। आपको चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। आप अगर हार्ड वर्क करेंगे तो इट विल टेक अ टाइम, आप ग्रो करने में बहुत डिफिकल्ट होगा। वंस यू हैव अ फिक्स गोल सेट कि दैट विद इन अ 5 years और विद इन अ 8 years और विद इन अ 10 years दैट आई वांट टू बी अ जनरल मैनेजर, तो अगर आपके पास गोल सेट है तो बिकॉज आप उसी अकॉर्डिंग प्लान करके काम करेंगे तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल विद अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बिकॉज इंडिया का जो सबसे यंगेस्ट GM था, ही वॉज एट द एज ऑफ 24। So when I came to know that he was at 24, I was also literally surprised and shocked. But once what he told me that if you have any fixed goal and you have determined towards a goal, once you will achieve your goal because you have a hard working and the determination. So once you learn the outcomes and the things you want to learn in the department, so that will be a beneficial for you because वो आपके करियर में ग्रो करने के लिए बहुत हेल्प करता है, ठीक है। और इसी के साथ में अगर आपको और कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज और यू कैन ड्रॉप मी अ कमेंट, सो वेयर आई कैन मेक अ वीडियो ऑन एज वेल। तो जिसमें भी आपके डाउट्स हों आप मेरे को बिल्कुल टेंशन फ्री होकर ड्रॉप कर सकते हैं, तो मैं आपकी वीडियो बना सकता हूँ और आपके डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ। सो इन द वीडियो आई शेयर माई सोशल मीडिया लिंक्स so you can easily connect with me, where you can join me
on my updates, that what I am doing and what will be my future events and what will be the upcoming videos I am uploading, or you want to give any suggestions, so you can drop me a message so that I can work on the same. I hope if you like my video, so do share my video as well and hit the bell and hit the like button as well to and although I'll say that in the downstairs you will see a subscribe button, so hit the subscribe button as well and hit the bell icon as well. So in this video we are wrapping up all the things, and keep healthy, stay safe, and to avoid contacting with the corona disease. So see you guys until next time. Hardik Dutt, this is signing off. Till then, take care. Bye bye.